हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर एम.एस. चौहान एंड टेक्निकल पॉइंट पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में इंग्लिश मॉडल पेपर सेट फर्स्ट कक्षा 10वीं के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए हमें 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है और यह पूरा प्रश्न पत्र 70 मार्क्स का होता है। दोस्तों, इस पेपर को 2 भागों में बांटा गया होता है, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोस्तों, सेक्शन ए के अंतर्गत हमारे बुक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि सेक्शन बी के अंतर्गत ग्रामर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, सेक्शन ए और सेक्शन बी के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत एक पैसेज दिए जाते हैं और उस पैसेज से आधारित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन दोनों प्रश्नों का उत्तर इस पैसेज से ढूंढ कर लिखने होते हैं। पैसेज इस प्रकार है: ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, who was a postmaster and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. Question number A, who laughed heartily and why? Question number B, what made the postman a wish for? Question number first A का आंसर, a postman laughed heartily after showing the letter to God to the postmaster. Question number first B का आंसर, the postman laughed to see the letter addressed to God. Question number second, answer one of the following questions in about 60 words. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों में देना होता है। A, what quality of Yudhishthira pleased the Yaksh most? B, give a character sketches of the postmaster. Question number second A का आंसर, Yudhishthira gave satisfactory answer to all questions of the Yaksh pleased, so he granted him that one of his brothers would be revived to life. Yudhishthira, after thinking deeply, chose Knuckles to be restored. Yudhishthira, who was alive, was Kunti's son, and so he wanted that one of Madri's sons should be alive. The Yaksh was pleased most with his impartiality and love for justice, and rewarded him by reviving all his brothers' lives. Question number second B का आंसर, the postmaster was a fat, good and generous person. He was happy and fun-loving. When he saw the letter to God, he broke out laughing. For the sake fun, he decided to answer the letter in order to shake the writer's faith in God. He was also a kind, generous person. He decided to help the farmer. He collected money from post office employees and friends, and himself gave a part of salary he had a good deed. Thus, there were admirable qualities in the character of the postmaster. Question number third, answer 2 of the following questions in about 25 words each. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से केवल 2 प्रश्न के उत्तर 25 वर्ड्स में देने होते हैं। A, who was Lencho? What were his main problems? B, why does Nehru call the Ganga the river of India?
C. What was Socrates' aim in talking to the people? Question number third, A का आंसर, Lencho was a poor farmer. The only one thing needed according to him was heavy rain or a little shower for his field of ripe corn. He looked towards the northeast sky to see the clouds. Question number third, B का आंसर, नेहरू calls the Ganga the river of India because she is the beloved of the Indian people. She is a symbol of India age long culture and civilization, history, maths, sentiments and beliefs of the Indian people are attached to this river. Question number third, C का आंसर, Socrates was a highly thinker. He wanted to make his countrymen better. This was his aim of life. So he used to talk to the people to let them know what was right and noble. Question number 4. Match the words of list A with their meanings in list B. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत मिलान करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जो लिस्ट ए से लिस्ट बी का मिलान करना होता है। लिस्ट ए, फर्स्ट रिजेंबल, सेकेंड कंफ्यूज्ड, थर्ड ओवर पावरिंग, फोर्थ रेस्ट्रेन। लिस्ट बी, ए परप्लेक्स्ड, बी टू लुक लाइक, सी कंट्रोल, डी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का आंसर बी, सेकेंड का आंसर ए, थर्ड का आंसर डी, फोर्थ का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत एक स्टेंजा दिया जाता है और उस स्टेंजा से आधारित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन दोनों प्रश्नों का उत्तर उस स्टेंजा पर आधारित होता है। स्टेंजा इस प्रकार है, नॉट enjoyment and not sorrow is our distant indoor way, but to act that each tomorrow find us further than today. First, write the name of the poet and the poem from which the above stanza has been taken. Second, point out the rhyming words in the above noted lines of poetry. Question number 5, फर्स्ट का आंसर, द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सम ऑफ लाइफ रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड का आंसर, सारो राइम्स विथ टुमारो एंड वे राइम्स विथ टुडे। क्वेश्चन नंबर 6, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत हमें 2 पोएम के नाम दिए जाते हैं जिनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ता है। फर्स्ट द विलेज सॉन्ग, सेकेंड द फाउंटेन। अथवा करके एक और प्रश्न पूछा जाता है जैसे राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। दोस्तों, आपको यह ध्यान रहे कि यहाँ पर 4 लाइन्स की पोएम लिखनी होती हैं और आपको वो पोएम लिखना होता है जो आपके इस प्रश्न पुस्तिका में न दिया हो। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में लिखने होते हैं। फर्स्ट, व्हाई डिड द गिल्टी trembled before Vikramaditya? Second, why was Vikramaditya praised by one and all? Third, why did Edison join the railway? Question number 7, first का आंसर, the guilty trembled before Vikramaditya because they knew that his eyes would go down deep in their hearts and he would know their guilty at once. क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड का आंसर, विक्रमादित्य was the king of Ujjain. He was very popular in the history for his perfect judgment. No guilty could ever escape his eyes, but he never punished an innocent
man. Hence, he was praised by one and all. Question number 7, third answer. Edison needed more money to buy books to read and also to carry out his experiments. So he decided to take up a job in the railway. He earned $2 on the first. Number 8. Point out the ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें हमको यह बताना होता है कि कौन सा वाक्य सही और कौन गलत है। फर्स्ट, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज लेइंग बोरिड इन पास्चर। सेकेंड, द कावर्ड बॉय सेट ऑन द माउंड एंड बिकेम ग्रेव एंड सीरियस। थर्ड, Thomas Alva Edison was a great inventor of England. Fourth, the invention of his talking machine made Edison famous all over America. Question number 8, first answer true. Question number 8, second answer true. Question number 8, third answer false. Question number 8, fourth answer true. Question number 9, select the most suitable अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत 4 ऑप्शनल प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से किसी एक सही ऑप्शन का चुनाव करके लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, एडिशन डाइड ऑन ऑप्शन नंबर फर्स्ट 18 अक्टूबर 1931। सेकेंड, 28 September 2005. Third, 10 December 1995. 18 September 1931. Question number 9 का B, Edison got a beating from his mother because option number first, he had smashed the eggs and spoiled his salt. Second, he had hatched the eggs. Third, he had sold the eggs. Fourth, he had eaten up the eggs. Question number 9 का C, the Bikram somewhat owes its origin to option number first, Ashok. Second, Chandragupta Maurya. Third, Samudragupta. Fourth, none. Question number 9 का D, the angel took the judgment seat to option number first, the sky. Second, another kingdom. Third, the sea. Fourth, the palace of the king. Question number 9 A का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 B का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 C का आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 D का आंसर फर्स्ट। सेक्शन B, क्वेश्चन नंबर 10, डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और चारों प्रश्नों के सामने ब्रैकेट में यह बता दिए जाते हैं कि किस सेंटेंस को क्या बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए, द माउंटेन्स ऑफ द टॉप्स कवर्ड स्नो आर विद द ईयर द थ्रू आउट। दोस्तों इस क्वेश्चन को रीऑर्डरिंग सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी, रोशनी सेड टू हर फ्रेंड्स कामा एंड कामा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क नाउ। दोस्तों इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी, ही टीचेस अस इंग्लिश एवरी डे। दोस्तों इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी, माय फादर विल गो होम व्हेन द रैन डैश डैश डैश। दोस्तों एक यहाँ पे क्रिया दी गई होती हैं, उस क्रिया का सही फॉर्म डैश डैश के स्थान पे भरना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन अगेंस्ट द सेंटेंसेस टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई डू नॉट पे अटेंशन डैश 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 माई प्रॉमिस। दोस्तों डैश डैश के स्थान पर किसी प्रीपोजिशन का चुनाव करके लिखना होता है, जैसे आप, टू, विथ, फॉर में से। क्वेश्चन नंबर 11 का बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 बी के अंतर्गत
एक अधूरा सेंटेंस दिया जाता है जिसे हमें पूरा करना होता है। सेंटेंस इस प्रकार है, व्हेन शी रिटर्न फ्रॉम हर कॉलेज डैश डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 11 का सी, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 सी के अंतर्गत दो स्पेलिंग दी गई होती हैं जिनमें कहीं कहीं हमारे लेटर डिसअपेयर्ड होते हैं और सही लेटर का चुनाव करके भरना होता है। फर्स्ट एस डैश जी डैश आई एफ डैश सी डैश एन सी डैश। सेकेंड डी डैश एस सी डैश डबल एस आई डैश एन। क्वेश्चन नंबर 11 का डी, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 डी के अंतर्गत पंक्चुएशन से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें कैपिटल लेटर और विराम चिन्हों का प्रयोग करके सही करना होता है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, रोशनी सेड टू हर ब्रदर यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत हमें एक हिंदी में पैसेज दिया जाता है जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। पैसेज हमारा इस प्रकार है, वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य है, वे हमें फल फूल तथा विश्राम के लिए छाया प्रदान करते हैं। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। वृक्ष वर्षा कराते हैं और भूमि क्षरण भी रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन और एक लेटर दिए जाते हैं जिनमें से किसी एक का उत्तर देना होता है। चाहे तो आप लेटर का उत्तर दें या एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन हमारा इस प्रकार है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड द मैरिज पार्टी और सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। और लेटर हमारा इस प्रकार है, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड you 1000 rupees for the examination fee and for purchasing some books. Question number 14. Write an essay on one of the following topics in about 60 words. Points of help are given below for each topics. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत हमें 3 ऐसे दिए जाते हैं जिनमें से किसी एक पर हमें ऐसे लिखना होता है और ध्यान रहे उस ऐसे के अंतर्गत हमें कुछ निम्न प्रकार की टॉपिक दी जाती हैं और उसी टॉपिक के अंतर्गत हमें ऐसे लिखना होता है। ए, माय मदर। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सेकेंड, हर पर्सनालिटी, एजुकेशन एंड बिहेवियर। थर्ड, हर क्वालिटीज। फोर्थ, हर डेली लाइफ। फिफ्थ, कंक्लूजन। बी, पॉल्यूशन। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सेकेंड, एयर पॉल्यूशन। थर्ड, वाटर पॉल्यूशन। फोर्थ, नॉइज पॉल्यूशन। फिफ्थ, कंक्लूजन। सी, माय बेस्ट फ्रेंड। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सेकेंड, हर आर हिज पर्सनालिटी। थर्ड, हर आर हिज हैबिट्स। फोर्थ, हर आर हिज qualities. Fifth, my opinion. Number 15. Read the following passage carefully and answer the questions set there on. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के अंतर्गत एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज से आधारित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें उन पैसेज से ढूंढकर लिखना होता है। पैसेज हमारा इस प्रकार है, मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेक डाउन इज द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वॉक विदाउट
friction. Work, whether of brain or body, is beneficial and health giving, freed from all anxiety and worry. A man will accomplish for more than a hurried and worried man. He will also retain his health. Question number A. What do many people often complain? B. What is the cause of the loss of health of some people after work?